लास्ट क्लास ये डिस्कस किया था अपन, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एक बार लिखो तो उसको शॉर्टकट में। रिलायबल कब होगा इंफॉर्मेशन? व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय एविडेंस। ठीक है, उसके बाद रेलिवेंट का मतलब क्या था? बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबल का मतलब कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, कंपेरेबल मतलब हम लोग हमारे बिजनेस का डेटा कम से कम प्रीवियस डेटा एंड कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर कर सके, बिकॉज कंपेरेबिलिटी नहीं होगा तो फॉरकास्टिंग नहीं होगा, आप फ्यूचर बजट्स नहीं बना पाओगे। ठीक है, इसलिए और फेथफुल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या था? और एक है ना लास्ट, फेथफुल प्रेजेंटेशन, ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, फ्री फ्रॉम बायसनेस, ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, ईमानदारी से होना, ऐसे लगना नहीं चाहिए कि नहीं इसमें कुछ तो चोरी है। राइट, तो इसको लिखना है एक बार, हेडिंग रहेगा एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले रिलायबल, रिलायबल के अंदर लिखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, accounting information becomes reliable, accounting information becomes reliable when it is supported by supporting evidence, when it is supported by supporting evidence. Accounting information becomes reliable when it is supported by supporting evidence. Example, vouchers, bills, etc. इफ आपने आपके बिजनेस में गुड्स परचेज किया है तो आपके पास परचेज बिल होगा। ठीक है, जैसे आप लोग शॉपिंग वगैरह करके आते हो, रिटर्न देना होता है, तो मॉल वाला कभी बोलता है ना आपने हमारे यहीं से थोड़ी लिया ये प्रोडक्ट, तो आप उसको बिल प्रेजेंट कर देते हो। वो बिल क्या है? दैट इज द एविडेंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन provided by information provided by our books, information provided by our books should be relevant, should be relevant we ignore, full stop, we ignore all the irrelevant transactions, we ignore all the irrelevant transactions of the business. Next, understandable. Understandable क्या था? Accounting information, accounting information should be, पीछे स्पेस ही नहीं छोड़ा क्या?
बैठने का जगह है उन लोग का पीछे वाला में, घुसने का जगह नहीं होगा, थोड़ा आगे का करो बेंच को, ये वाला बेंच से आगे करना स्टार्ट करो, ये नहीं वो वाला सेकंड वाला से, तब उनको स्पेस होगा बैठने का। अंडरस्टैंडेबल में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी इन सच फॉर्म that it is इन लोग के पास that it is easily understood by all the users। यूजर्स पता है ना कौन कौन था, दो तरह का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी इन सच फॉर्म दैट इट इज इजीली अंडरस्टूड बाय ऑल द यूजर्स, ठीक है। इट शुड बी prepared with it should be prepared with uniform rules and principles। it should be prepared with uniform rules and principles। it should be prepared with uniform rules and principles। Clear, understandable, comparable। accounting information should be easily comparable with previous years। Accounting information should be easily comparable with previous years। Full stop। It helps in better planning it helps in better planning and forecasting for the future years। It helps in better planning and forecasting for the future years। Last, faithful presentation। Faithful presentation। Accounting information should give accounting information should give true and fair view। Accounting information should give true and fair view information about the business। True and fair view information about the business। It should disclose it should disclose all the relevant facts and data all the relevant facts and data।
ठीक है, यहाँ तक जस्ट लास्ट क्लास जो डिस्कस किया था उसको लिख लिया अपन ने। 4 पिलर्स अकाउंट्स का, कौन सा? एसेट, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। ठीक है। To ascertain financial position of the business, what we will prepare? Balance sheet, right? Balance sheet. What items of business you will show in balance sheet? Assets and liabilities. On which side of the balance sheet asset is written? Right side. ठीक है। और liabilities, what do you mean by assets? Valuable items which will result in cash, benefit और reduce cost। ठीक है, जो कैश लेके आएगा धंधे में या मेरे को फायदा पहुंचाएगा फ्यूचर में या फिर मेरी कॉस्ट को कम करेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? एसेट्स। लाइबिलिटीज क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स आउटसाइडर। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? Amount invested by the businessman into the business is known as capital. Capital business के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? लाइबिलिटी है, ना ही इनकम है ना ही एक्सपेंस, इट्स अ लाइबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग्स? ओनली मनी? गुड्स भी हो सकता है ना? मनी और गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। ड्राइंग्स बिजनेस के लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट। इनकम, एक्सपेंस? Drawings is neither an income nor an expense for the business, but it reduces liability of the business. ड्राइंग से लाइबिलिटी कम हो जाएगा ना, प्रोप्राइटर को कम पैसा देना पड़ेगा एट द एंड, तो ड्राइंग रिड्यूसेस लाइबिलिटी। क्लियर है ये वाला चीज? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? Because of business entity concept, we record capital as a liability. Clear है ये चीज? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या था? सबको इक्वेशन याद है खाली। एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है। एज पर डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, इफ समथिंग इज डेबिटेड देन अदर नीड्स टू बी क्रेडिटेड। कुछ डेबिट होगा तो कुछ क्रेडिट होगा। ठीक है, पूरे अकाउंट में अपना डेबिट क्रेडिट ही चलने वाला है। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं था? व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? Revenue minus total expense of what? Yes, total expense related to purchase of goods. ठीक है। रेवेन्यू का मतलब क्या था? अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। गुड्स बेच के जो पैसा अपन को मिला है उसको अपन बोलता है रेवेन्यू। उसको खरीदने में जो पैसा लगा वो माइनस कर दो तो आई विल हैव इनकम। इज इट क्लियर? गेन, व्हाट डू यू मीन बाय गेन? जो रेगुलरली नहीं होता है, इंसिडेंटल टू अवर बिजनेस ऑपरेशंस। जैसे कि कोई कोर्ट केस जीते हम लोग, ठीक है, फिक्स एसेट्स, एसेट्स को बेच के मेरे को फायदा हुआ तो उसको हम लोग बोलता है गेन। एंड व्हाट डू मीन बाय प्रॉफिट? टोटल इनकम ऑफ द बिजनेस माइनस टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस इज प्रॉफिट। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ अ बिजनेस। टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ अ बिजनेस, इसको अपन बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं था? धंधे में दो ही चीज होगा, या पैसा आएगा या पैसा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता। बिजनेस कर ही क्यों रहे? इनफ्लो ऑफ मनी, आउटफ्लो ऑफ मनी, या बिजनेस में पैसा आता है या फिर बिजनेस से पैसा जाता है। ठीक है, या तो मनी इनफ्लो होगा या फिर
आउटफ्लो, ठीक है। अब जब भी पैसा आता है ना, दो चीज होती है आपके साथ में। एक जब पैसा आता है तो आपको खुशी होती है, और एक जब पैसा आता है तो आपको टेंशन होती है। इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं होता। Either the flow of money into your business will give you happiness, else it will give you tension. जो खुशी दे रहा है ना वो डेली देगा, लेकिन टेंशन कभी कभी देता है, राइट। जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ में योर वीकली, डेली और मंथली पॉकेट मनी गिव्स यू हैप्पीनेस, खुशी दे रहा है वो आपको, ठीक है। बट लेट्स सपोज कि आपने क्या किया, आपको पापा ने कमिट किया था कि आफ्टर योर क्लास 10 रिजल्ट आपको एक्टिवा बाइक जो कुछ भी दिलाएंगे, राइट, या फिर नया फोन दिलाएंगे। बट पापा अभी इतना एंगेज चल रहे हैं बिजनेस में, उनको टाइम ही नहीं मिल रहा है, वो आपके पास भी ज्यादा देर नहीं बैठ पा रहे, डिवोट नहीं कर पा रहे। बट अब अचानक से पापा को एक बिजनेस ट्रिप पे जाना है, एंड यू आर लाइक कि नहीं पापा बहुत हुआ, इतना दिन से आप टाल रहे हैं, काम है काम है काम है, हमको नहीं पता, मेरे को मेरा सामान चाहिए, आप कमिट किया था कि 10th में अच्छा रिजल्ट आएगा तो हम आपको ये दिलाएगा। एंड पापा इज लाइक कि पक्का दिलाएगा, अभी भी मना नहीं कर रहे, ही इज सेइंग कि हाँ पक्का दे रहेगा, लेकिन एक बार हम बिजनेस ट्रिप से आ जाए फिर आगे दिला देगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट आप एश्योर्ड नहीं, फिर आप आओगे फिर गोली दे दोगे कुछ ना कुछ, हम नहीं मानेगा ऐसे। आई वोंट एग्री। पापा बोलता अच्छा ठीक है, यू वांटेड एक्टिवा, कि तुमको ट्यूशन आना जाना स्कूल आने जाने के लिए एक्टिवा चाहिए, कीप दिस 1 लाख रुपीज विथ यू, ठीक है। आई विल बी रिटर्निंग आफ्टर 10 डेज, फिर अपन मार्केट जाएंगे और एक्टिवा लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, पापा ने आपके हाथ में 1 लाख रुपए दे दिया। कैन आई से इट इज एन इनफ्लो ऑफ मनी? बट यू थिंक दिस 1 लाख इज गिविंग यू हैप्पीनेस until and unless you buy the Activa? This gives you a lot of tension। कल को पापा तो देख के चले गए, और इस 10 दिन में ये पैसा इधर से उधर हो गया, गलती से तुमसे गुम गया, या चोरी हो गया, या कुछ भी हो गया, फिर तो लग जाएगी, पापा भी ले लेंगे और सामान तो मिलना दूर की बात है। यानी कुछ पैसा मुझे खुशी नहीं देता, टेंशन देके जा रहा है। बेसिकली वो क्या है, पापा आते ही सबसे पहले ना ये तुम्हारी तबीयत भी बारे में नहीं पूछेगी, वो 1 लाख रुपए कहाँ है, सबसे पहले उसके बारे में पूछा जाएगा कि आपने केयरफुली रखा या फिर नहीं रखा। यानी सम मनी गिव्स मी टेंशन, बट जो मंथली पॉकेट मनी, वीकली पॉकेट मनी, डेली पॉकेट मनी, उसके बारे में पूछते हैं क्या कभी? आपने जहां खर्चा किया किया, देयर इज नो इश्यू, बिकॉज यू आर फुल फ्रीडम। आपको मोमो खाना था वो खाया, आपको जो लेना था आपने वो किया, बट वहां आपसे कोई कुछ नहीं पूछता। बिजनेस में भी ऐसे ही होता है, सर्टेन मनी गिव्स मी हैप्पीनेस। जैसे मैं गुड्स सेल करता हूँ, गुड्स का मतलब क्या था, जिस चीज में अपन डील करते हैं उसको गुड्स बोलते हैं। अरे जिसका दही जमा हुआ थूक दो, हो गया, जम गया अंदर में, अब थूक दो, बोलो जितना नहीं बोलोगे प्रॉब्लम होगा, आप लोग याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो गुड्स क्या था, द प्रोडक्ट इन विच वी डील्स, इज इट क्लियर? हमेशा फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता, बिकॉज जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं उनके पास तो गुड्स गुड्स है ही नहीं ना, इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज बोला जाता है। बट ठीक है, गुड्स आपको पता है कि जिसमें अपन डील करते हैं। जब अपन बिजनेस में अर्ली इन द मॉर्निंग शॉप में गए, बैठे, कस्टमर आ रहे हैं, हमारा गुड्स बिक रहा है, पैसा देके जा रहे हैं, खुशी मिलती है, ठीक है। वो रेगुलर बेसिस का काम है। बट आपने क्या किया, बैंक से लोन लिया, यू टुक लोन फ्रॉम द बैंक, कैन आई से इट इज एन इनफ्लो ऑफ मनी? पैसा तो आया बिजनेस में, लेकिन क्या ये पैसा खुशी लेके आया क्या? ये पैसा साथ में टेंशन लेके आया, क्यों? रिटर्न करना पड़ेगा, मुझे वही पैसा अच्छा लगता है जो मुझे रिटर्न ना करना पड़े। कस्टमर ने गुड्स परचेज किया, पैसा देके चले गए, नहीं ये पैसा मुझे किसी को नहीं देना, इसमें जो हमने अर्न किया वो हमारा है। बट व्हाट अबाउट बैंक लोग, जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस को इन्वेस्ट करता है, कैपिटल, डू यू थिंक कैपिटल ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू द बिजनेस? कैपिटल लाइबिलिटी लेके आ रहा है, बिकॉज जब भी बिजनेस बंद होगा या बिजनेसमैन जाएगा, बिजनेस को तो रिटर्न करना पड़ेगा ना। लेट्स से सपोज आपने अपने बिजनेस में किसी रिलेटिव से लोन लिया है, इट इज ए इनफ्लो ऑफ मनी, पैसा तो आ रहा है, लेकिन क्या ये पैसा साथ में टेंशन भी ला रहा है क्या? एक पॉइंट के बाद रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। अभी तो थोड़ा टाइम हो गया, रिसेंटली कोविड के आसपास का समय का बात है, रिलायंस टुक एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फेसबुक। मार्क जकरबर्ग ने अराउंड 1 रिलायंस का कंपनी का स्टेक परचेज किया था, ह्यूज अमाउंट था। डू यू थिंक रिलायंस के पास
पैसा आया, बट क्या इनफ्लो ऑफ पैसा वो खुशी दिया क्या? ऑब्लिगेशन था। जब फेसबुक ने इन्वेस्ट किया था उस कंपनी के अंदर, तो फेसबुक को रिटर्न में आरओआई चाहिए था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मैं पैसा दे रहा हूं, आपकी कंपनी और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, राइट? तो ध्यान रखना, इनफ्लो बेसिकली दो चीज होगा। वन, इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस, सेकेंडली इट विल ब्रिंग टेंशन। और टेंशन वाला पैसा क्या हर दिन हाथ में आता है क्या? कभी भी नहीं आएगा ना। बट जो खुशी दे रहा है, यानी सेल ऑफ गुड्स, गुड्स सेल करके जो आपको पैसा इनफ्लो हो रहा है बिजनेस में, वो तो रेगुलर बेसिस पे होगा। इज इट क्लियर? बट बैंक से लोन लेना, बिजनेस में इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टर से पैसा उधार लेना, रिलेटिव से पैसा उधार लेना, डेली करोगे क्या? कभी कभार होगा, साल में एक बार, 5 साल में एक बार, 10 साल में एक बार, ऐसा कहानी होगा ना। तो बेसिकली इनफ्लो दो तरह का है। वन इज रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग बोले तो बार बार होता है। जैसे कि सपोज आपने किसी को लोन दे रखा है, आपने बिजनेस का पैसा किसी को उधार दे रखा है, लोन दे रखा है। अब लोन क्यों देते हैं हम? इंटरेस्ट इनकम हो, ताकि मेरा जो कोर बिजनेस से पैसा आ रहा है वो तो आए। टू इंक्रीज माई अर्निंग कैपेसिटी, में और रेवेन्यूज ओपन कर रहा हूं, ताकि मेरे पास सरप्लस फंड था, मैंने किसी को उधार दे दिया, अब मेरे बिजनेस के गुड से तो मेरे को पैसा आ ही रहा है सेल करके, प्लस टाइम टू टाइम वो मुझे इंटरेस्ट भी देगा, राइट? अब ये जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, ये रेकरिंग इन नेचर होगा या नॉन रेकरिंग इन नेचर? हर महीना मिलेगा बाबा। जब आपने किसी को लोन दिया है, फॉर एवरी डे यू विल गेट द इंटरेस्ट, हर दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना। सो इट्स अ रेकरिंग इन नेचर। बट देर आर सर्टेन अमाउंट, जैसे कि मैंने बोला बैंक लोन, बैंक से लोन लेना, प्रोपराइटर मालिक से पैसा लेना बिजनेस में, इट्स अ नॉन रेकरिंग इन नेचर। समझ में आया? तो जो डेली बेसिस पे होता है, उसी को अपन बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। जो मेरे बिजनेस में होता ही रहता है, पैसा का इनफ्लो आता ही है, उसको अपन बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन जो कभी कभी होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है, ठीक है? दो चीजों का, इधर रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा कौन सा इनकम है और कौन सा लाइबिलिटी है। बस हो गया। कैपिटल रिसिप्ट इज अ लाइबिलिटी, वेयर इज रेवेन्यू रिसिप्ट इज अ इनकम। रेवेन्यू रिसिप्ट इज एन इनकम, नथिंग एसेट्स, वो मेरा इनकम है, ठीक है? गुड सेल करके जो मैं कमा रहा हूं वो तो मेरा इनकम हुआ ना, ठीक है? मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, मैंने किसी को पैसा उधार दिया था, मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है उससे, वो तो मेरा इनकम है। इज इट क्लियर? तो दो ही तरह का इनफ्लो होगा, वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट, अनदर वन इज कैपिटल रिसिप्ट। बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन चार चार हेड्स में ही जाएंगे। ये जो चार पिलर्स हमने डिस्कस किया था, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को थोड़ा सा ब्रेक कर दो तो लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। कैपिटल भी तो लाइबिलिटी है। क्लियर है यहां तक? तो इनफ्लो दो चीज हुआ, वन इज रेकरिंग इन नेचर, अनदर वन नॉन रेकरिंग। रेकरिंग वाले को अपन क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। रेकरिंग वाले को क्या बोलेंगे? और नॉन रेकरिंग वाले को रेवेन्यू रिसिप्ट इज एन डैश फॉर द बिजनेस, इनकम फॉर द बिजनेस, वेयर इज कैपिटल रिसिप्ट इज अ, मत लिखो, मैं लिखाऊंगा, सब कुछ लिखाऊंगा, आपकी कॉपी में होगा जितना अपन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पहले प्रोसेस कर लो, ठीक है? एकदम दिमाग में पिक्चराइजेशन चलना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट में तभी मजा आएगा जब सच में आपने अपना बिजनेस अज्यूम किया है, क्या मेरा दुकान है या फिर फैमिली बिजनेस है, तो आप उसमें जा रहे हो, आप वो चीजों को फील करो कि डेटा हो रहा है, ठीक है? अब देखो आउटफ्लो की बात करते हैं। जब पैसा खर्चा होता है ना, कुछ पैसा ऐसा है जो हमने एक्सपेंस किया और वो मुझे सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड तक का बेनिफिट देगा। अकाउंटिंग पीरियड ना, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग पीरियड? हमने डिस्कस किया था 3 तरह का ईयर्स होता है, एक कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर। बट व्हेन आई से अकाउंटिंग पीरियड, आई मीन टू से फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग पीरियड मतलब दैट पीरियड जिसके लिए आप अकाउंटिंग करोगे। बिजनेस में हम किस ईयर का अकाउंटिंग करते हैं? फाइनेंशियल ईयर का अकाउंटिंग करते हैं। इज इट क्लियर? तो ऐसा खर्चा या ऐसे एक्सपेंसेस जो मुझे सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड तक का बेनिफिट देंगे, और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो मुझे लॉन्गर पीरियड के लिए बेनिफिट्स देंगे। जैसे कि स्मॉल एग्जांपल, आप
रेस्टोरेंट गए, खाना खाया, डिनर के लिए गए थे, ठीक है, डिनर के लिए वहां पे अच्छे से दबा के खाया, हो सकता है किसी का भी हो, पापा दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो, बट एक्सपेंस तो हुआ। ये बेनिफिट कब तक रहेगा? ये जो आपने अभी रात को खाना खाया है, इसका बेनिफिट कब तक? अगले दिन सवेरे फिर से भूख लग जाएगा, फिर से अपन को खाना चाहिए ना, राइट? तो ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, पैसा तो गया ना, राइट? बट आपने मार्केट में गए और एक गोल्ड चेन बाई किया, कहना से ये भी एक खर्चा ही है, एक्सपेंस तो किया, पैसा जा रहा है, आउटफ्लो ऑफ मनी हो रहा है, लेकिन ये जो गोल्ड चेन है ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, क्योंकि ओवर द पीरियड जब गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होगा तो आपकी उस गोल्ड चेन का वैल्यू भी इंक्रीज होगा ना। इज इट क्लियर? तो एक्सपेंस दो ही होगा, वन इज रेकरिंग, अनदर वन इज नॉन रेकरिंग। डेली बेसिस पे बिजनेस में जो हम एक्सपेंस करते हैं, जैसे सैलरी पेमेंट करना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी पे करना, टेलीफोन बिल पे करना, गुड्स परचेज करना, ये सबका बेनिफिट कितना टाइम तक मिलेगा? वन अकाउंटिंग पीरियड। एक साल का यदि आपने सैलरी पे किया है तो नेक्स्ट ईयर तो फिर से पे करना पड़ेगा ना, एवरी मंथ पे करना होता है। दैट्स व्हाई दीज आर एक्सपेंसेस व्हिच आर रेकरिंग इन नेचर। लेकिन आपने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बनवाए, बढ़िया सा इंटीरियर बनवाया, हर साल बनवाओगे क्या? आपने सेंट्रलाइज एसी लगवा ली, हर साल लगाओ, हर 6 महीने बाद में मिलने बैठे, यही तो काम करना है अपन को, ये थोड़ी करेंगे, ये तो एक ही बार होगा। आपने कोई अच्छी सी पैकिंग मशीन लगवा ली, या फिर अपने गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए फैक्ट्री में मशीन लगवा लिया, अब वो मशीन हर साल थोड़ी लगेगा, ओवर द पीरियड बेनिफिट मिलेगा आपको, तो ये भी तो एक्सपेंस ही है, बट ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा। इज इट क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारे लिए नॉन करंट एक्सपेंस। इज इट क्लियर? तो जो भी मेरा एक साल को बेनिफिट देने वाला खर्चा है उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं, वेर जो मेरे को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा वो सब मेरे लिए क्या बन जाएगा? एसेट्स। क्या बन जाएगा? एसेट्स। क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट्स का डेफिनेशन भी तो यही होता था, जो मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट्स दे, या कैश दे, या कॉस्ट को रिड्यूस करे। इज इट क्लियर? लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंस, आपने स्टाफ को सैलरी पे किया तो 1 मंथ का सैलरी का बेनिफिट मिल गया, कहानी खत्म। नेक्स्ट मंथ फिर से वो काम करेगा, फिर से आपको सैलरी देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया, एक महीने में जितना बिल आया था आपने पे कर दिया, नेक्स्ट मंथ फिर से बिल आएगा, फिर से पे करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? रेकरिंग इन नेचर। इज इट क्लियर? जो रेकरिंग इन नेचर होता है उसको अपन बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो नॉन रेकरिंग है उसको अपन क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रिसिप्ट भी दो होता है और पेमेंट्स भी दो होंगे। रिसिप्ट में दो कौन सा था? रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। और पेमेंट में रेवेन्यू पेमेंट्स या रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस। तो टेल मी, चार पिलर्स है, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। कैपिटल रिसिप्ट आपके लिए क्या है इन चार पिलर्स में? लायबिलिटी। कैपिटल पेमेंट्स क्या है? एसेट्स। एसेट्स। कैपिटल पेमेंट मतलब तुमने एक मशीन परचेज किया, बिल्डिंग परचेज किया, ऑफिस परचेज किया, ठीक है, एसी परचेज किया, ये सब क्या है? तुम्हारे लिए एसेट्स बना रहे ना। तो कैपिटल पेमेंट्स आर एसेट्स, वेयर एज रेवेन्यू पेमेंट्स एक्सपेंस, नॉर्मल एक्सपेंस है। जब आप अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करोगे तो आपको ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ेंगे। क्लियर है? एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है? इनकम। एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, गुड सेल करके पैसा आया, ठीक है, कमीशन मिला, कमीशन बिजनेस भी तो होता है। इवन आप लोग जब कोई सर्टेन टारगेट अचीव करते हो, हर प्रोडक्ट का अपना एक टारगेट होता है, वो टारगेट अचीव करने पे कंपनी आपको कमीशन देती है, तो जो कमीशन रिसीव हो रहा है वो भी रेकरिंग इन नेचर है। इज इट क्लियर? रेवेन्यू पेमेंट्स का एग्जांपल, अरे जो डेली बेसिस पे बिजनेस में हम लोग को खर्चा करना पड़ता है वही तो रेवेन्यू पेमेंट्स है। ट्रेवलिंग, गुड्स परचेज करना, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, ये सब क्या है? रेवेन्यू पेमेंट्स। इज इट क्लियर? कैपिटल रिसिप्ट्स का एग्जांपल बोलो। कैपिटल रिसिप्ट बोला मैंने पहले तो, बैंक लो, बैंक लो,
ठीक है, बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा लगाता है, फॉर बिजनेस इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। इज इट क्लियर? कैपिटल पेमेंट्स का एग्जांपल, परचेज ऑफ मशीनरी, अब गोल्ड तो पर्सनल लाइफ का था, ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ एसी, कोई भी फर्नीचर परचेज किया आपने अपने बिजनेस के लिए, लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज किया बिजनेस के लिए, ये सब आपके लिए क्या है? कैपिटल पेमेंट्स। इज इट क्लियर? तो लिखना इनफ्लो के अंदर ऊपर में लिख सकता हूं ऐसे मनी, बिजनेस में या तो मनी का इनफ्लो होगा या फिर आउटफ्लो होगा। इफ मनी का इनफ्लो है तो अपन क्या मानेंगे? दो चीज हो सकता है इधर, हाँ, हैप्पीनेस या फिर टेंशन, ठीक है। हैप्पीनेस को अपन बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जैसे कि आपके घर में कोई भी आपका बड़ा रिलेटिव या कुछ भी देके जाते हैं, वो आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन मम्मी कहीं बाहर जा रही है और मम्मी के हाथ में एक पैसा था, कोई आंटी देके गए, मम्मी बोलते एक बार रखो, हम थोड़ा सा नीचे कोई काम जाके आ रहा है, वापस तुमसे ले लेगा। अच्छा नहीं लगता, वापस क्यों लेना, हमारे पास ही रहने दो। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है मेरे लिए? इनकम वेरियस कैपिटल रिसिप्ट एक होगा। कौन सा रेकरिंग इन नेचर होगा? रेकरिंग का मतलब क्या है? रिपीटेटिव, ये रेकरिंग इन नेचर है। वेयर इज कैपिटल रिसिप्ट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर। रेवेन्यू रिसिप्ट बिजनेस के लिए क्या होगा? इनकम। Whereas capital receipts are liability. Revenue receipts के एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपन को मिलेगा, रिसिप्ट है ना, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स और कुछ कमीशन, कमीशन, रिसीट और एक एग्जांपल लिया था, इंटरेस्ट रेगुलर मिलेगा ना तुमको। यदि तुमने एक बार किसी को पैसा उधार दिया है, जब तक वो पैसा रिपेमेंट नहीं करेगा तब तक तुम्हारे बिजनेस में इंटरेस्ट आता ही रहेगा ना, तो वो रेकरिंग टाइप का बन जाता है। ऐसा तो है नहीं कि वो 2 साल या 5 साल में एक बार इंटरेस्ट देगा, फॉर एवरी डे तुम्हारे बुक्स में इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव, एक्सेट्रा, सेल ऑफ गुड्स हो सकता है, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एक्सेट्रा। कैपिटल रिसीव्स का एग्जांपल, बैंक लोन और बैंक लोन, फैमिली लोन, एनी टाइप ऑफ लोन इज द कैपिटल रिसीव्स। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बिजनेस में, जब तुम कैपिटल लगाते हो तो बिजनेस के लिए तो क्या है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन इट्स अ लायबिलिटी। हो जाएगा इतना से, सैलरी से पैसा आता है क्या? वी आर टॉकिंग अबाउट रिसिप्ट्स, इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब बिजनेस में पैसा आना, सैलरी से तो पैसा जाएगा तो वो आउटफ्लो में हो गया। नहीं, होम लोन पर्सनल हो गया, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। हाँ,
हाँ एज ए गिफ्ट, ठीक है। हाँ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल वैपिटल नहीं है। गिफ्ट मतलब तुम गिफ्ट इन द सेंस कुछ तो करेगा ना, रिटर्न में तुमको कुछ तो मिलेगा। तो बिजनेस क्या करेगा कि तुम्हारा कैपिटल को कम कर लेगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली कैपिटल को ही माना जाता है, ऐसे गिफ्ट नहीं होता कुछ, नथिंग कॉल्ड गिफ्ट इन अ बिजनेस, ठीक है। तो तुम्हारा बिजनेस में एक तरफ लैपटॉप बोल के एसेट इंक्रीज हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली उतना ही वैल्यू से कैपिटल बढ़ जाएगा। हाँ पे नहीं करेंगे, बट स्टिल अकाउंटिंग कंसेप्ट डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, बिकॉज ऑफ डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इफ कुछ डेबिट हुआ तो कुछ तो क्रेडिट होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे किसी और को गिफ्ट करते वो कोई और कौन है, वो कोई एक बिजनेस है या एक सोल नॉर्मल पर्सन है। तो वी डू नॉट लर्न अकाउंट्स फॉर ए नॉर्मल पर्सन, अकाउंटिंग इज बेसिकली डन फॉर द बिजनेस, ठीक है। कोई इंडिविजुअल लाइफ में क्या कर रहा है उससे फर्क भी नहीं पड़ता है अकाउंट्स को, अकाउंटिंग इज प्योरली डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो यदि बिजनेसमैन को दिया, बिजनेस को दिया है तब अकाउंटिंग आएगा, लेकिन ऐसे ही किसी को ट्रांसफर कर दिया, पापा ने अपने बच्चे को ट्रांसफर कर दिया शेयर्स, तो उसका कोई अकाउंटिंग नहीं होता, ठीक है। उसका इनकम टैक्स रूल्स के अंदर जाता है, जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो अलग अलग सेक्शंस हैं, तो वहां पे वो देख लेंगे, ठीक है। अपन तो देखेंगे नहीं, क्लास 11 12 हायर लेवल में माइंड भी कोई सीए में दिखेगा तो देख लेंगे। हाँ हाँ, बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीदा तो तुम्हारे बिजनेस में स्टॉक आ गया, ठीक है। अब वो बिका तो नहीं है, तो जो गुड्स नहीं बिकता उसको अपन स्टॉक बोलते हैं, वो पड़ा है एसेट है, मेरे लिए फ्यूचर में उसको बेच के पैसा आएगा। कॉरेस्पॉन्डिंगली जिससे तुमने खरीदा उसको पैसा भी तो चुकाना पड़ेगा, तो वो तुम्हारे लिए एक लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी को ही तो अपन बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो स्टॉक बढ़ा मतलब एसेट्स बढ़ा, और क्रेडिटर भी तो बढ़ गया लाइबिलिटी, तो दोनों बराबर है। एक्सपेंसेस है वो नॉर्मल, आउटफ्लो ऑफ मनी होगा, नॉट कैपिटल, डिपेंड्स। अब डिपेंड्स, ये एडवर्टाइजमेंट और जो तुम एक्सपेंस कर रहे हो कितना बड़ा अमाउंट का है, ठीक है। बट इट इज नेवर, आज के डेट में एडवर्टाइजमेंट कैंपेन और ये जितना भी हम एक्सपेंस करते हैं, दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज बिजनेस कैन नॉट बी रन विदाउट दीज एक्सपेंसेस। तो ये नेचुरल है, होता ही है, बस डिपेंड करता है साइज ऑफ अ बिजनेस। छोटा बिजनेस होगा तो छोटा एडवर्टाइजमेंट करता है, लेकिन बड़ा बिजनेस होगा तो बड़े लेवल पे करेगा, उसके यहाँ पे बड़ा बड़ा ब्रांड एम्बेसडर होगा, वो अच्छे टीवी स्टार्स को उठाएगा, स्पोर्ट्स पर्सन को उठाएगा, टीवी में भी एड्स रन करेगा, तो वो बड़ा खर्चा है, बट वो खर्चा ही एक्सपेंस है, ठीक है। बट छोटे लेवल पे करोगे तो वो भी एक्सपेंस है, बट उसी में फिर अपन एक टर्म आ जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, विद द टाइम सीखेंगे उसमें। मैं सेम फिर से यही एग्जांपल दूंगा आपका एडवर्टाइजमेंट, ठीक है रेवेन्यू, इट विल नेवर बी ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये रेकरिंग है, हर साल आपको करना होता है, एंड एवरी डे एवरी मंथ आपका टीवी में एड्स रन हो रहे हैं, तो वो रेकरिंग इन नेचर है। तो आउटफ्लो बेसिकली दो तरह का होगा, वन इज रेवेन्यू पेमेंट, अनदर वन कैपिटल पेमेंट। मैं नीचे कर देता हूँ उसको। रेवेन्यू पेमेंट्स, कैपिटल पेमेंट्स, या फिर पेमेंट्स को अपन क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा रेकरिंग और कौन सा नॉन रेकरिंग, ये रेकरिंग इन नेचर है, revenue expenditure are recurring in nature, whereas capital expenditure are treated as
expense while calculating net profit or net loss of the business. Treated as expense while calculating net profit or net loss of the business. और कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर रहे हैं? ट्रीटेड एज एसेट्स. Treated as assets. इसका एग्जांपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का एग्जांपल सैलरी पेड, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, purchase of goods, etc. टैक्स दो तरह का होता है. हाँ, वन इज डायरेक्ट टैक्स, अनदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है. डू यू नो एनी डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? जिसको पता है वही बताओ, जिसको नहीं पता वो सुन लो. डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंट ट्रांसफर कर सकता है. टैक्स का बर्डन मेन पर्सन उसी पे. एग्जांपल इंडिया में डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स, जीएसटी. ठीक है. डायरेक्ट टैक्स इज बेसिकली सिंपल सा फंडा, जो बंदा कमा रहा है उसी को पेमेंट करना पड़ेगा, राइट. और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इनडायरेक्टली समवन एल्स इज पेइंग ऑन योर बिहाफ. जैसे कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाते जाते हो, तो रेस्टोरेंट ओनर अर्न कर रहा है ना, आप कुछ कमा रहे हो क्या वहां से, बट स्टिल टैक्स कौन पे करके आता है? हम लोग पे करके आते हैं, क्योंकि वो बिल में क्या करता है? जीएसटी लगा के हमसे पैसा ले लेता है. तो दैट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. लेकिन जब रेस्टोरेंट ओनर का जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ है, उस पे जो टैक्स देना होगा ना, वो तो उसी को ही देना होगा, राइट. तो टैक्स बिजनेस के लिए खर्चा ही नहीं है. डायरेक्ट टैक्स इंडिविजुअल पर्सन पे लगेगा, सोल प्रोप्राइटर पे. हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कंपनी लेवल. ठीक है. नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में वेयर एक सिंगल ओनर होता है जो अपना दुकान चलाता है, तो बिजनेस के ऊपर टैक्स लगता ही नहीं, कुछ सोल प्रोप्राइटर के ऊपर टैक्स लगता है, राइट. सो इनकम टैक्स is neither an expense nor an income for the business. It will be treated as drawings. If business ने इनकम टैक्स पे किया है, तो बिजनेस कोई नेचुरल पर्सन तो नहीं है. फॉर ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ध्यान रखना, वैसे तो आप बोलोगे भैया कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल रहे हो. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन अलग अलग है, और अभी आप बोल रहे हो कि बिजनेस के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा. ऐसा थोड़ी ना होता है. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो बिजनेस ओनर होता है ना, उसी को ही इनकम टैक्स पे करना होता है. बट व्हेन आई टॉक अबाउट कंपनी, कंपनी को एक पर्सन की तरह देखा जाता है इन द आई ऑफ लॉ. तो कंपनी को खुद को टैक्स पे करना होता है. तो कंपनी जो टैक्स पे करता है, जैसे रिलायंस, उसका खुद का इनकम टैक्स पे करना होता है. तो रिलायंस जो टैक्स पे करता है ना, वो उसके लिए एक्सपेंस है. बट फॉर ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, जो कि आपका क्लास 11 का सिलेबस है, इट इज प्योरली ऑन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में इनकम टैक्स विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग. इफ बिजनेस ने इनकम टैक्स पे किया, इट मींस इट इज पेड ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर. मालिक के बिहाफ में बिजनेस ने पे कर दिया, सो इट विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स. ठीक है. समझ में आया? किसी एम्प्लॉय को एडवांस में सैलरी दिया, यस. ऐसे करवाने के लिए वो बाद में 1 महीने यस, सर्विस मिलेगा. तो फिर नॉन रेकरिंग कैसे? मैंने तो लिखा ही नहीं नॉन रेकरिंग में उसको. सैलरी में होता है ना नॉन रेकरिंग. हाँ ऐसे होता है ना. हाँ, बट उसमें खर्चा वो वैसे नहीं किया ना, तो थोड़ा और हायर लेवल आगे चला गया. रुको, मैं तुमको एडवांस का भी बताऊंगा, प्रीपेड अप्रूव सब कुछ डिस्कस करेंगे. हर चीज का ड्यूअल इंपैक्ट होता है.
dual aspect concept, ठीक है, everything will have a dual impact due to the dual aspect concept। वो जो मैंने एडवांस सैलरी पे किया ना, उसको एसेट दिखाना पड़ता है, वरना मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन मैच ही नहीं करेगा। और बिजनेस में ऐसा कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता जिससे अकाउंटिंग इक्वेशन मैच नहीं करे, करना ही पड़ेगा, उसकी वजह से दिखाना पड़ेगा। treated as assets, example paying off loans reduces your liability, it never increases your assets। purchase of machinery, स्टॉक का मतलब होता है गुड्स लाइंग अनसोल्ड, ठीक है। तो पहला बात तो ये समझो, स्टॉक इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। चलो इसके बाद में डिस्कस करते हैं। किसी ने स्टॉक बोला, अब उसको पता तो रहे कि हाँ नहीं स्टॉक नहीं होना चाहिए। परचेज ऑफ मशीनरी हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, एक्सेट्रा। ये क्लियर है? इनफ्लोज आउटफ्लो क्लियर है? व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स, व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट्स, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस के लिए क्या होगा, चार फिगर में से एसेट, ठीक है। वेयर एज कैपिटल रिसिप्ट्स बिजनेस के लिए क्या होगी, लायबिलिटी। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होगा, इनकम। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस। क्लियर है ये चीज, दिमाग में सेट रहेगा। अभी किसी ने मेरे को बोला स्टॉक भैया, ठीक है, लेट्स डिस्कस विद एग्जांपल। सपोज छोटा सा दुकान है, मैंने क्या किया, 10 पैकेट मैगी परचेज किया एट द रेट ₹6 ईच। 60 रुपए का मैगी परचेज किया, छोटा सा दुकान है, गांव में बैठा हूं मैं, ठीक है। अब उसमें से 5 पैकेट फॉर कैश एंड 5 फॉर क्रेडिट। इसका मतलब 5 पैकेट मैगी इमीडिएटली मैंने पे कर दिया, और 5 पैकेट मैगी मैंने क्या किया होगा, उधार लिया, बाद में पेमेंट करूंगा, ठीक है। इस उधार जिससे लिया है उस पर्सन को हम बिजनेस में क्या बोलते हैं, डेटर से तो पैसा मिलता है, क्रेडिटर। कौन होता है क्रेडिटर, ना ना ना, जिनको पैसा देना से तो बैंक से लोन लिया उसको भी पैसा देना है, क्या उसको अपन क्रेडिटर बोलेंगे क्या? यस, द पर्सन फ्रॉम होम वी बाय गुड्स ऑन क्रेडिट, वही क्रेडिटर है मेरे लिए बिजनेस में, बिजनेस लैंग्वेज में। और डेटर कौन था, हाँ यस, जो हमसे उधार में गुड्स लेके गया है उसको हम लोग डेटर बोलते हैं। क्लियर है? हमने जिससे परचेज किया उधार में वो हमारे लिए क्रेडिटर, हमने जिसको सेल किया उधार में वो मेरे लिए डेटर। क्लियर है? सोल्ड 3 पैकेट फॉर कैश एट द रेट ₹10 each। sold 3 packets for cash at the rate ₹10 each। 3 packets for credit at the rate 12 each। At the end of the day, what is your stock? स्टॉक का मतलब क्या होता है, गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो
आपके बिजनेस में कितना स्टॉक है? सपोज आपके पापा ने नया नया शोरूम ओपन किया है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया अच्छे डिजाइनर चेयर्स परचेज करने के लिए। आप फर्नीचर के शोरूम में जाते हो, वहां से सिलेक्टिव 15 चेयर्स परचेज करते हो, ठीक है? आए आप दुकान में, 15 चेयर्स डिलीवर्ड हो चुकी है। पापा पूछ रहे हैं चेयर्स लिया? यस। तो पापा को वो इंफॉर्मेशन बिजनेस में लिखना है, तो पापा ने बोला ठीक है लिखाओ। तुमने बोला लिख लो 15 चेयर लेके आए। पापा फिर से पूछ रहे हैं चेयर लेके आए कितने में? तुम बोले लिख लो 15 चेयर आया बिजनेस में। कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? आप 15 चेयर्स बार बार बोलोगे, पापा रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर नीड्स ट्रांजैक्शन इन मनी। अरे जब तुम पैसे की बातें ही नहीं बोलोगे तो बिजनेस उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेगा। 15 चेयर से क्या फर्क पड़ता है बिजनेस को? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर चेयर एट द रेट हाउ मच, कितने रुपए में? पापा एक चेयर हम 10,000 रुपए का लेके आए, डिजाइनर चेयर था, ठीक है ना? प्रॉब्लम क्या है? लेके आया, कोई दिक्कत नहीं है, कितना पैसा चला गया? अब ये 1.5 लाख हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ना? तो व्हेन आई एम आस्किंग यू स्टॉक, व्हाई यू आर सेइंग 4 पैकेट्स? 4 पैकेट्स कहां लिखूं मैं? विदाउट मनी मेजरमेंट हम बिजनेस में कुछ लिख ही नहीं सकते, राइट? बिना पैसे की भाषा बिजनेस में कोई काम की नहीं। इट शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ व्हाट इज योर स्टॉक? दैट इज माय स्टॉक। ओके, कैसा बाणिया लोग रे तुम? कैसे धंधा करेगा? तुमने 10 पैकेट मैगी खरीदा था एट द रेट 6 ईच, 6 रुपए एक एक करके पैकेट मैगी खरीदा। उसमें 10 पैकेट, उसमें से 6 पैकेट आपने बेच दिया। आपके पास कितना पैकेट बचा? इन क्वांटिटी 4, बट इन वैल्यू टर्म्स 24। तो क्या 24 20 क्या डेटा आ कहां से रहा है? पर पैकेट 24 रुपीज का ही तो आपके पास बचा होगा ना? इज इट क्लियर? आस्क यू व्हाट वाज योर इनकम, कितना कमाया? फोर्टी 40 भाई इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं निकाल पाओगे ना, बाहर लूट लेंगे आपको। व्हाट वाज इनकम? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस फॉर परचेज। व्हाट इज योर रेवेन्यू? रेवेन्यू किसको बोलते हैं अपन? गुड सेल करके जितना पैसा आया। हाउ कम 6 रुपीज? बिल्कुल गलत है अनुश्री। अरे सेल करके कितना पैसा आया? 3 पैकेट मैगी बेचा 10 रुपए में एक, 3 पैकेट मैगी बेचा 12 रुपए में एक। हाँ हाँ, क्या? तो व्हाट मिलेगा तो? चलो तुम लोग धीरे धीरे नफ्स को ऐसे टच करो भैया, ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो। चलो आज का डिस्कशन पॉइंट था तुम्हारा वाला पॉइंट, विल डिस्कस, इट इज वन ऑफ द कंसेप्ट जो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? 66 rupees was my revenue minus cost of परचेज। इन 6 पैकेट्स मैगी को खरीदने में कितना रुपए लगा?
तो व्हाट इज योर इनकम? समझ में आया? हाँ, एक मिनट लेके बस वापस सिचुएशन में क्या कर रहे आपने 10 पैकेट मैगी मार्केट से परचेज किया। पर पैकेट मैगी कॉस्ट वाज 6 रुपीज, 60 रुपीज वैल्यू टोटल। उसमें से 5 पैकेट मैगी का इमीडिएटली पे कर दिया और 5 पैकेट मैगी का बाद में पे करोगे। आगे देन आपने अपने बिजनेस में 10 पैकेट मैगी आ गया, उसमें से 3 पैकेट्स मैगी आपने सेल कर दिया एट द रेट ₹10 ईच, एंड 3 पैकेट्स मैगी सेल किया है फॉर क्रेडिट एट द रेट 12 ईच। अब कैश कस्टमर को थोड़ा बेनिफिट तो देना पड़ेगा, वो तुरंत पैसा देके जा रहा है तो आपने उसको 10 रुपए में बेच दिया, और जो उधार लेके जा रहा है आपने उसको कितने में बेचा? 12 रुपए में एक पैकेट बेचा, राइट? पहला क्वेश्चन ये था कि मैंने चाहता था कि आप लोग बताओ मेरे को स्टॉक कितना है। आपने बोला 4 पैकेट, इसका कोई मेरे बिजनेस में वैल्यू नहीं है। दैट वाज क्वांटिटी। यू शुड क्वांटिफाई योर वैल्यूज। क्वांटिटी टर्म्स में हम अकाउंटिंग नहीं करते। अकाउंटिंग इज डन व्हेन इट इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। यदि पैसे की भाषा नहीं है तो अकाउंट्स कुछ नहीं करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। फिर तो लिटरेचर सब्जेक्ट हो गया, लिखते जाओ। सिर्फ लिखना नहीं, हमें रिकॉर्ड करना सीखना है। तो इट शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो आपने बोला कि रेवेन्यू हुआ था, रेवेन्यू बोले तो गुड सेल करके जो पैसा मिलता है मुझे ग्रॉस। तो मैंने टोटल 6 पैकेट्स मैगी को सेल किया, एक सेल था 10 रुपए ईच और एक था 12 रुपीज ईच, तो टोटल सेल वैल्यू मेरे को इतना मिला। एंड इन 6 पैकेट्स मैगी को परचेज करने में मैंने कितना पैसा दिया होगा? 6 रुपीज ईच, तो 36, तो मेरा इनकम कितना होगा? 30। क्लियर है? स्टॉक कितना है? 4 पैकेट मैगी बचा 6 रुपए का एक, 20 रुपीज, सॉरी 24 रुपीज, 24 रुपीज का आपके पास स्टॉक है। ठीक है, अब किसी ने मुझे बोला था कैपिटल एक्सपेंडिचर में स्टॉक एग्जांपल वर्ड, या किसमें था? कोई तो एग्जांपल कौन लिया था स्टॉक का एग्जांपल? हाँ, किसमें था वो? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि इसको लगा कि हम जो भी खर्चा करते हैं, इफ एसेट डेवलप हो रहा है तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, राइट? अब मुझे ये बताओ, स्टॉक नाम का कोई ट्रांजैक्शन आपने बिजनेस में किया क्या? आपने गुड्स परचेज किया, नाउ इट्स अ ट्रांजैक्शन। आपने गुड्स सेल किया, इट्स अ ट्रांजैक्शन। सेल माइनस परचेज जो मेरे पास बचा है, इट्स द एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट्स आर नेवर टर्म्ड एज ट्रांजैक्शन, दीज आर नोन एज इवेंट्स। आपने रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके इनकम निकाला। इनकम कोई ट्रांजैक्शन है क्या? इनकम इज अ रिजल्ट ऑफ फ्यू ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली आपके स्कूल में एनुअल फंक्शंस होते हैं, उसमें कैटेगराइजेशन से चलता है। छोटे बच्चे भी परफॉर्म करते हैं, आप लोग भी परफॉर्म करते हो, अलग अलग एक्ट्स होता है। ठीक है, तो आप ऐसे बोलते हो यार क्लास 4 का परफॉर्मेंस अच्छा था। स्कूल में जो भी कमिटी होती है आप लोग की, जो इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, उन लोग बोलते हैं यार ये अच्छा था परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, इस परफॉर्मेंस में मजा आया। बट जब आप लोग के साथ में फिर प्रिंसिपल भी बैठते हैं, ओवरऑल इवेंट वाज सक्सेसफुल। इवेंट इज व्हाट? इट्स द रिजल्ट ऑफ ऑल द परफॉर्मेंस। यानी कैन आई से बिजनेस में ट्रांजैक्शन जब एक्चुअल में करते हो, फिर उस ट्रांजैक्शन का जो नेट रिजल्ट है, दैट इज एन इवेंट। तो क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, इट इज अ इवेंट। ठीक है, इसलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलते, बिकॉज एक्सपेंडिचर में आपका पैसा जा रहा है, बट स्टॉक से पैसा जा नहीं रहा, इट्स अ रिजल्ट। टू मैच माय अकाउंटिंग इक्वेशन मुझे इसको निकालना पड़ता है। ठीक है, पहला कंसेप्ट समझ में, व्हाट इज ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज इवेंट। ट्रांजैक्शन क्या है? ड्यू टू ट्रांजैक्शन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस विल इंपैक्ट। आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगा। जैसे मैंने गुड्स खरीदा, कैश में परचेज किया, तो क्या होगा? कैश कम होगा और गुड्स यानी स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। फिर मैंने क्रेडिट में परचेज किया, तो क्या होगा? गुड्स इंक्रीज हो गया, स्टॉक इंक्रीज हो गया, वेयर बुक्स में क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे, मुझे उनको पैसा भी देना है, तो माय फाइनेंशियल पोजीशंस आर चेंजिंग। मैंने गुड्स सेल किया,
तो बिजनेस में पैसा आया, स्टॉक चला गया और इनकम भी आया, राइट? द इम्पैक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन विल चेंज माय पोजीशंस ऑफ द बिजनेस, बट स्टॉक इज जस्ट अ इवेंट, इट्स अ रिजल्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन। समझ आया डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट? ट्रांजैक्शन में एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता है, वेयर इज इवेंट इज अ रिजल्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन इन अ बिजनेस। यहां तक क्लियर है? समझ में आया ट्रांजैक्शन और इवेंट लॉजिक नया? अब और एक चीज समझो, जब भी आप बिजनेस करते हो फंडामेंटली दिमाग में 3 असम्पशन। एक बात बताओ, हमने आज बिजनेस स्टार्ट किया, कोई भी ये सोचेगा क्या ये 6 महीने बाद अपना दुकान बंद कर देगा या 1 साल बाद धंधा बंद कर दूंगा? मैं आज दुकान खोल रहा हूँ, बहुत मन हुआ है बिजनेस करने का एकदम, तो मैं एक काम करता हूँ 50 लाख इन्वेस्ट करता हूँ, साल भर बाद बंद कर दूंगा। ऐसा कोई भी बिजनेसमैन आपको दिखाएगा? बिजनेस का इंटेंशन क्या है? व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ अ बिजनेसमैन व्हेन ही स्टार्ट्स अ बिजनेस? जब आप किसी भी बिजनेस की ओपनिंग देखते हो, आप क्या सोचते हो? ये धंधा चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। जो स्टार्ट कर रहा है उसका इंटेंशन भी वही है, और जो देख रहा है उसको भी यही लग रहा है कि ये बिजनेस लॉन्ग पीरियड के लिए चलेगा। यानी इट्स एन इनबिल्ट assumption, if a business is started then it will continue for a longer period of time, even if the proprietor dies। मालिक मर भी जाए ना, फिर भी धंधा तो चलता जाएगा, यही इंटेंशन होता है। दिस इज वन ऑफ द assumption ऑफ अ बिजनेस। जब आप अकाउंटिंग रूल्स कन्वेंशंस पढ़ते हो या किसी के बिजनेस को ऑब्जर्व करते हो, ये आपके दिमाग में पहला assumption आता है, दैट इज गोइंग कंसर्न assumption। क्या ये? गोइंग कंसर्न assumption। गोइंग मतलब चलता ही जाएगा, कंसर्न मतलब बिजनेस, ठीक है? कंसर्न मींस बिजनेस। हमारे दिमाग में एक assumption होता है कि बिजनेस विल continue for a longer period of time, that is n number of years. As per going concern assumption, business will continue for a longer period of time. Man may come, man may go, but business will goes on forever. इंसान आएगा, चला भी जाएगा, बट धंधा बंद नहीं होगा। देखा ना ऐसे लोगों का सालों साल चलता ही जा रहा है। दादा बैठते थे, दादा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद आप भी बैठोगे। Right, that is a going concern assumption. Is it clear? Because of this assumption, you reclassify your assets and liabilities. You reclassify your assets and liabilities. Asset क्या था? वो वैल्यूएबल सामान जो मेरे बिजनेस में पैसा लेके आएगा या बेनिफिट्स देगा या कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, राइट? नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कैश और बेनिफिट्स, there are two types of assets. One is short period के लिए, 1 साल के अंदर अंदर या तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा या आपके पास पैसा आ जाएगा। And there are certain other assets in your business जो लंबे समय तक चलेगा। Example, debtor. Debtor, do you think it's an asset for the business? उससे पैसा मिलना है, लेकिन क्या उससे पैसा 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद लोगे क्या? मैक्स टू मैक्स विद इन 1 ईयर। यदि आपने इन द मंथ ऑफ फेब किसी कस्टमर को सेल किया, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो उससे पैसा लोगे ही लोगे ना। ऐसा थोड़ी ना, अच्छा ठीक है भाई तू अपना 5 साल बाद दे देना, चलेगा क्या? नहीं होगा। तो मतलब वो क्या है? शॉर्टर पीरियड के लिए। लेकिन आपने बिल्डिंग परचेज किया, ऑफिस बिल्डिंग, इसका बेनिफिट क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 1 साल से ज्यादा तो कम से कम। ऐसा तो है नहीं ना 1 साल के अंदर फिर से बेच दोगे, फिर नई बिल्डिंग खरीदोगे, ऑफिस खरीदोगे, ऐसा नहीं होगा ना। थोड़ा लंबा समय तक होगा। मशीनरी परचेज किया, अब मशीन आप बिजनेस में यूज करोगे एटलीस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। क्लियर है? देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? वी आर लर्निंग दिस बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न assumption। जब मुझे पता है कि मेरा एक इनबिल्ट assumption है that business will continue for a longer period of time, I have to classify my asset as current assets and non-current asset। current and non-current। current का मतलब होता है वो सारी assets which will give me cash or benefits within next financial year। current assets का मतलब क्या है? all the assets which will give me either cash or benefits
विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड नेक्स्ट कमिंग ईयर में। नॉन करंट का मतलब है जो मेरे बिजनेस पे 12 महीने से ज्यादा चलेगा। ऑल एसेट्स विच विल रन इन माय बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स आर नॉन करंट एसेट्स, जैसे कि लैपटॉप, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब मेरे बिजनेस में 12 महीने से ज्यादा समय के लिए चलता है, तो दीज आर कैटेगराइज्ड एज नॉन करंट एसेट्स। वेयर एज डेटर, 1 साल के अंदर पैसा चाहिए उसे, स्टॉक, स्टॉक क्या रख के रखोगे क्या, बेचना है इसको, जितना फटाफट बेचना है, तो विद इन 1 ईयर हमें क्या करना है, कैश रियलाइज करना है। मैंने 2 चीज बोला, एसेट्स विच विल गिव मी कैश और बेनिफिट्स। समटाइम्स इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपके पास पैसा ही आए, आपको बेनिफिट्स भी आ सकते हैं। कोई भी बता सकता है कि मैंने करंट ईयर में ऐसा कुछ किया है कि नेक्स्ट 1 ईयर में उसका बेनिफिट आएगा ही आएगा, मैं उसको एसेट बोलूंगा। इन्वेस्टमेंट नॉर्मली डन इन अ बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, इंटेंशन बात अलग है कि तुम्हारा इंटेंशन 1 साल का था, तो यस इन्वेस्टमेंट। मैंने मार्च महीने में नेक्स्ट कमिंग 6 मंथ्स का भी रेंट पे कर दिया, या फिर इन द मंथ ऑफ मार्च आई पेड सैलरी टू माई स्टाफ फॉर अप्रैल मई जून, नेक्स्ट कमिंग 3 मंथ्स का भी सैलरी पे कर दिया। अब बताओ जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे तो 3 मंथ मुझे उस स्टाफ से वापस पैसा मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेगा। समझ में आया? इसी को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? प्रीपेड। अरे फोन में प्रीपेड रिचार्ज करवाते हो ना, हम पहले ही रिचार्ज करवा लेते हैं, बट बेनिफिट क्या होता है, बाद में मिलता है। इज इट क्लियर? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए मैंने टर्म यूज किया बेनिफिट। समझ में? व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस? प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा फिर, today we have paid for the future, is it clear? That is prepaid expense। जैसे कि मार्च में आपने स्टाफ का सैलरी मार्च का तो पे किया, उसको नेक्स्ट 3 मंथ्स का भी पे कर दिया, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। इज इट क्लियर? तो गोइंग कंसर्न assumption क्लियर है? क्या है? बिकॉज ऑफ दिस assumption we classify our assets and liabilities into current and नॉन करंट। करंट का मतलब क्या, विद इन 12 मंथ्स, जिसका बेनिफिट विद इन 12 मंथ्स मिलेगा वो मेरे लिए करंट एसेट्स है, एंड जिस एसेट्स का बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स मिलेगा वो मेरे लिए क्या है, नॉन करंट एसेट्स। एनी ऑब्लिगेशन विच आई हैव टू रीपे विद इन 12 मंथ्स, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेशन पे करना है, करंट लाइबिलिटीज। ठीक है? एनी लाइबिलिटी या एनी ऑब्लिगेशन विच आई हैव टू पे आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, नॉन करंट लाइबिलिटी। समझ में आया? 12 महीना मतलब हम कौन सी डेट में 12 महीना चेक कर रहे हैं, वी आर स्टैंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च, ईयर एंड में, ईयर एंड में चेक कर रहे हैं कि नेक्स्ट कमिंग 1 ईयर के अंदर कितना बेनिफिट्स मिलना है और कितना पेमेंट करना है। जो 1 ईयर का स्पैन होगा वो मेरे लिए करंट है, और 1 ईयर से ज्यादा के लिए होगा वो मेरे लिए नॉन करंट है। तो वैसे ही हम क्लासिफाई कर लेंगे नॉन करंट एसेट है या फिर लाइबिलिटीज है। इज इट क्लियर? ये सब क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न assumption। क्लियर है? एज पर गोइंग कंसर्न assumption, business will continue for a longer period of time. Man may come, man may go, but business will goes on forever. Because of this assumption, we classify our assets and liabilities as current and non-current. Is it clear? जैसे अपनी लाइफ, अपन जब से पैदा हुए लेके assumption है कि कुछ साल तो जिएगी, वैसे कल का भरोसा नहीं है, बट फिर मन में गट फीलिंग तो है 60-70 साल तो शायद जी ले। उस वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, हमारे कुछ एसेट्स को हम लोग करंट मान रहे हैं और कुछ एसेट्स को बहुत केयरफुली रख रहे हैं। ठीक है? आपकी लाइफ की जितनी भी ज्वेलरी वगैरह इतनी केयरफुली है, जितनी भी एफडी आप लोगों के नाम पे बना हुआ है वो सब केयरफुली मेंटेन्ड है। क्यों? वो सब नॉन करंट एसेट्स है। लेकिन जो आप हर साल खरीद रहे हो, जैसे फोन, आजकल नॉन करंट बचा ही नहीं,
एवरी ईयर इतने नए मॉडल आ जाते हैं कि 4 5 6 महीने बाद में ही आपका रिएक्शन चेंज होता है फोन को लेके। तो खराब हो गया हमने, चलता ही नहीं है आजकल, तो आउटडेटेड, इसमें कुछ खुलता ही नहीं है आजकल। ये ऐसे रिएक्शन आने इसलिए स्टार्ट हो रहे हैं ताकि नेक्स्ट कमिंग 1 ईयर में आपका फोन रिप्लेस हो जाए। इज इट क्लियर? समझ में आया व्हाट इज करंट एंड नॉन करंट? करंट का मतलब क्या है? इफ आई से करंट एसेट्स तो इसका मतलब क्या है? बेनिफिट जो विद इन 12 मंथ्स। करंट लायबिलिटीज का मतलब, करंट बोला मैंने, करंट लायबिलिटीज ऑब्लिगेशन विच वी हैव टू पे विद इन 12 मंथ्स। ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब पे आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। एग्जांपल, लॉन्ग टर्म लोन, तुमने बैंक से 10 साल के लिए लोन ले रखा है तो क्या हो जाएगा? नॉन करंट हो जाएगा। क्लियर है? नॉन करंट एसेट्स, the benefits which will last for a period of more than, example machinery, building, furnitures, equipments, ये सब तुम्हारे लिए नॉन करंट एसेट होगा। क्लियर है? वन ऑफ द assumption। second assumption of a business, whatever you do in business you will do consistently। ऐसा नहीं आप फ्लक्चुएट करते रहोगे। अभी सपोज आपने कुछ एक धंधा स्टार्ट किया, एक पॉलिसी स्टार्ट करी, फिर अगले दिन चेंज नहीं करोगे, हर 6 महीने में चेंज नहीं करोगे। वॉट एवर यू विल डू कंसिस्टेंटली। बिकॉज जब आप कंसिस्टेंटली करते हो तभी आपको परफॉर्मेंस का पता चलेगा। ठीक है। अब आई नीड टू यूज वन टर्म, डेप्रिसिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? वैल्यू कम होना किसका? किसका? पैसे और गुड्स का वैल्यू कम नहीं होता। पैसे का कहाँ वैल्यू कम होता है? तुम्हारे पास 2000 का नोट पड़ा है, उसकी वैल्यू कम हुई है, गिव मी, आई विल बाई एट 800। डिमांड सप्लाई। अरे सिंपल सा फंडा है। आप कल जाओ मार्केट से नया आईफोन 15 प्रो मैक्स लेके आओ, एक हफ्ते बाद में मार्केट में बेचने निकल जाना, सेम वैल्यू मिलेगा क्या? क्यों? डेप्रिसिएशन। बस, राइट, दैट इज डेप्रिसिएशन। आपने एक नई कार परचेज करी, ठीक है, नया कार खरीदा, ब्रांड न्यू कार है, 40 लाख का कार परचेज किया, यू ड्राइव इट फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने बाद क्या वापस 40 लाख में बिक जाएगी क्या? दैट इज डेप्रिसिएशन। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, क्या बोला मैंने? फिक्स्ड एसेट। ठीक है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब जैसे कि सपोज 1 लाख रुपए का एक एसेट था जिसका लाइफ है 10 इयर्स, लाइफ इज 10 years, the value of asset is 1 lakh। every year कितना वैल्यू कम होगा? every year कितना वैल्यू कम होगा? 10,000। यदि एक एसेट का लाइफ 1 लाख है, तुम उसको 10 साल यूज करोगे तो हर साल कितना वैल्यू कम होगा? 1 lakh डिवाइडेड बाय 10, 10,000। तो कहना से 10,000 डेप्रिसिएशन हो रहा है हर साल, क्योंकि एवरी ईयर उसका वैल्यू क्या हो रहा है? कम होते जा रहा। इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं, राइट। अब ये तरीका था, और भी दूसरे मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। देयर आर कॉमनली, एक जो अभी मैंने बताया उसको हम बोलते हैं, याद रहे टर्म तो अच्छी बात, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमनली स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। एक होता है WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं। सो देयर इज अनदर मेथड जिससे आप डेप्रिसिएशन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग बिजनेस अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, बट कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल आपको ये बोलता है, इफ आपने बिजनेस में कोई एक प्रिंसिपल यूज किया, एक तरीका यूज किया है, इट शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड। ये assumption है कि आप कंसिस्टेंटली फॉलोड करोगे। सपोज पहले साल आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से वैल्यू कैलकुलेट किया, नेक्स्ट ईयर आपने फिर से मेथड चेंज कर दिया WDV, उसके नेक्स्ट ईयर आपने अमोर्टाइजेशन मेथड, अलग अलग मेथड्स है, आप बार बार चेंज कर रहे हो। ये बार बार चेंज करने से यूजर को कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि सारा इसके धंधे में प्रॉफिट नुकसान क्यों रहा है, उसकी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगी। He will not able to understand your financial statement because every year
आपके बुक्स में डेप्रिसिएशन का वैल्यू तो आ रहा है, बट ये चेंज होता जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही है चेंज हो कैसे रहा है. तो दैट इज द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल. whatever the policies or principle you adopt in your business should be consistently followed. ये एक assumption है कि कोई भी बिजनेस कर रहा है तो वो कंसिस्टेंटली काम करेगा. आई बात समझ में? क्या कंसिस्टेंसी ब्रेक ही नहीं हो सकता क्या? लेट्स से आप लोग कुछ अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, तो इट इज अज्यूम कि आप लोग कंसिस्टेंटली पूरे साल पढ़ोगे, कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तभी तो अच्छा रिजल्ट आएगा. इट इज अज्यूम, घर वालों के दिमाग में है कि आप लोग पढ़ोगे, आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, उस बोल के आपको स्कूल्स में भेज रहे या फिर कॉलेज में भेज रहे, वॉट एवर. क्लियर है? लेकिन क्या ये कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं हो सकता है क्या? सपोज आपने एक शेड्यूल बनाया, एवरी डे आई विल स्टडी फॉर 2 आवर्स, ज्यादा नहीं पढ़ना, हर दिन 2 घंटा में अपने पढ़ाई करूंगी, होमवर्क जो करना है, बट 2 घंटा पढ़ूंगी. बट क्या ये जरूरी है एवरीडे ये पॉसिबल हो? क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जब आप नहीं पढ़ पाओगे? कोई फंक्शन आ गया, अर्जेंट है, तबीयत खराब हो गया, मूड, वो तो कभी भी नहीं है. मूड नहीं है, किस दिन मूड ऑफ है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तबीयत खराब हो गया, कोई फैमिली फंक्शंस आ गया और भी कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन है, उस वजह से आपका कंसिस्टेंसी क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, राइट? तो फिर आप क्या करते हो? रीप्लान. एग्जाम नजदीक था, सोच के रखा था इस बार हर दिन 2 घंटा पढ़ेंगे, पढ़ा तो नहीं. अब 3 महीने बचा एग्जाम को, क्या हो जाएगा? 2 hours will be multiplied by 4. अब 1 घंटा करके 8 hours a day डेली पढ़ूंगी, सिलेबस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा. नाउ कंसिस्टेंसी को आपने क्या किया? चेंज किया, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा था. अरे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि यार डेली 2 घंटा मैं पढ़ तो रहा हूँ, बट फिर भी मेरा दोस्त मेरे से ज्यादा लेके आ रहा है, दैट्स नॉट सफिशिएंट, आई नीड टू इंक्रीज माय स्टडी आवर्स. तो फिर वो कंसिस्टेंसी को ब्रेक करता है, अपने आवर्स को चेंज करता है. इज इट क्लियर? तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो सकती है. सिमिलरली बिजनेस के अंदर में इफ आपने कोई प्रिंसिपल या पॉलिसी लगाया है, फॉलो करोगे, वेरी गुड, बट इट कैन बी चेंज्ड. अभी कब कब चेंज करोगे? व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ. सरकार ही कुछ ऐसा कानून लेके आ जाए, उसके बाद आप कुछ कर पाओगे क्या? ना ना ना, मेरा तो कंसिस्टेंसी है, मैंने पढ़ा है क्लास 11 में कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, एक बार जो मैंने सोच लिया, बस सोच लिया. आप कौन होते हो मेरे को नहीं पता, मैं कंसिस्टेंटली बिना हेलमेट जाऊंगा, अच्छा दिन जाता है मेरा, आपके बोलने से थोड़ी ना होगा हेलमेट पहनना पड़ेगा, मैं ना पहनूंगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना. वहां पे कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगा. तो बिजनेस में भी ऐसा ही है, व्हेन इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, कानूनी बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है. सेकंड, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है. whatever accounts you learn or do, it is as per the rules and principles, ठीक है. तो certain rules prescribed है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में. बहुत सारी अकाउंटिंग लोगों को नहीं आता था. एवरी बिजनेसमैन वेर कंफ्यूज कि किधर क्या करना है, कैसे करूं, नहीं पता. तब देयर वाज अ नीड, आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जितने भी सीए, ठीक है, उन लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम करते हैं एज पर अवर इकोनॉमी. वो सारे बिजनेसमैन को समझते हैं, कंसर्न देखते हैं, फिर एक कॉमन अकाउंटिंग प्रिस्क्राइब करते हैं. इस तरीके से अब आपको अकाउंटिंग करना है, राइट. अभी डेबिट क्रेडिट क्या, एक रूल ही तो है, रूल है, फॉलो करना पड़ेगा, उपाय नहीं है, ठीक है. सिमिलरली अकाउंट्स में भी ऐसे ही रूल है. तो वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही चेंज हो गया, देन वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ. क्लियर है? जैसे कि आपकी स्कूल यूनिफॉर्म ही चेंज होगी, क्लास 8 तक आप एक स्कूल में पढ़ रहे हो, जो कॉमन है यूनिफॉर्म वो है. अब सोचा था 9th में जो सिस्टर पढ़ रही थी उसी का ड्रेस से काम हो जाएगा, ठीक है. लेकिन अचानक से स्कूल वालों ने ड्रेस ही चेंज कर दिया, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई. मम्मी बढ़िया से चिपका रही थी, 3 बच्चे हो आप लोग, 1-1 साल का गैप ही है, ठीक है, चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है. अब क्या होगा, अचानक से चेंज हो जाएगा ना. वैसे ही बिजनेस में व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहला मैंने बोला व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, सेकंडली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही चेंज हो गया तो मुझे भी चेंज करना पड़ेगा अपने बिजनेस की अकाउंटिंग. तीसरा, आप जो कुछ भी चेंजेस लेके आते हो, आपको ऐसा लगता है कि इट इज फॉर द बेटरमेंट, राइट. आप अपनी लाइफ में जो कुछ चेंजेस लेके आ रहे हो, आपको ऐसा लगता है खुद के लिए भी अच्छा है और जो मुझे देखेंगे ना उनके लिए भी अच्छा है. सिमिलरली बिजनेस के अंदर में, if you feel that it will give you better information about the business, you're
यूजर्स विल हैव मोर इंफॉर्मेशन, मोर क्लैरिटी, तब आप चेंजेस कर लो, पॉलिसी चल। आई बात समझ में? तो 3 वजह से हम लोग कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। 1, इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। सेकंड, चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नंबर 3, इन फॉर द बेटरमेंट या फिर फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। या फिर क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा इंडस्ट्री, जिस आप इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उन लोग स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करते हैं, बट आप अनोखे हो, आप WDV मेथड यूज कर रहे हो। अब आपके जो यूजर्स है ना, जब आपकी कॉम्पिटिटर्स की बुक चेक करते हैं, उधर डेप्रिसिएशन कुछ अलग वैल्यू मिल रहा है, सेम एसेट्स आपके बिजनेस में भी है, वहां डेप्रिसिएशन का वैल्यू अलग आ रहा है। अब वो कंफ्यूज कि ऐसा क्यों हो, तो वो कंफ्यूजन ब्रेक करने के लिए यू कैन चेंज योर पॉलिसीज। आई बात समझ में? सो दैट वाज योर सेकंड assumption, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। तो 2 पढ़ा हमने, क्या क्या था? गोइंग कंसर्न एंड कंसिस्टेंसी, क्लियर है? नंबर 3, accrual basis of accounting, accrual basis of accounting, ठीक है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे आप पूरा का पूरा बिजनेस करोगे। अब आदित्य, जो तुमने एक दिन डाउट पूछा था कि भैया कि प्रॉफिट नहीं है तो हम लोग सैलरी को डेफर कर सकते हैं क्या? जिस मंथ में ज्यादा प्रॉफिट होगा उस मंथ में सैलरी का एक्सपेंस शो कर देंगे, और जिस मंथ में प्रॉफिट नहीं उस मंथ में एक्सपेंस नहीं शो करेंगे, रेंट होगा। चलो एक्सपेंस ही था, लेकिन दिखाना एक्सपेंस डेफर करना चाहता था। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जितने भी बिजनेस है इंडिया में, जितनी भी तरह की अकाउंटिंग हो रही है, दे ऑल आर फॉलोइंग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इट इज अज्यूम्ड, क्योंकि दूसरी कोई अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते। देयर यूज्ड टू बी अनदर अकाउंटिंग कैश बेसिस, अब वो खत्म हो गया, अब अलाउड ही नहीं है। बाद में पढ़ेंगे व्हाट इज कैश बेसिस, बट समझो द थर्ड assumption ऑफ अ बिजनेस, जब भी आप किसी बिजनेस को देखते हो ना, दिस इज योर थर्ड assumption, आपके ब्रेन में चलता है कि ये लोग तो एक्रूअल बेसिस से अकाउंटिंग करते होंगे। एक्रूअल बेसिस, नाउ व्हाट इज एक्रूअल बेसिस? While calculating profit or loss of a year, while calculating profit or loss of a year, आप उस एक साल में जितना इनकम या एक्सपेंस हुआ है सिर्फ वही कंसिडर करते हो। To calculate net profit or net loss of a business, you consider only income or expense for that year only, irrespective whether you have paid or not, or you have received or not. Let's say suppose एक साल में मैंने 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाया, assuming 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाया, पर स्टूडेंट फीस वाज 10,000, राइट? आउट ऑफ दैट 80 स्टूडेंट उन्होंने मुझे पहला पैसा दे दिया, एक साल का पूरा फीस दिया, बट 20 स्टूडेंट ने मुझे फीस नहीं दिया। What will be my total income for the year? 10 लाख। इररेस्पेक्टिव मुझे पैसा मिला या नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा, डूबा नहीं है। उन लोगों ने मुझे इस साल पैसा नहीं दिया, बोला नेक्स्ट ईयर साथ में दे देंगे, बट जब मुझे करंट ईयर का मेरा रेवेन्यू पता करना है, तब मैं क्या करूंगा? मुझे नहीं मिला उसको भी काउंट कर लूंगा। सपोज आई हैड अ स्टाफ, उसको मैं सैलरी देता हूँ 20,000 पर मंथ, बट मैंने उसको फरवरी एंड मार्च का सैलरी नहीं पे किया। What will be my total salary expense for the year? मेरा एक स्टाफ है, उसको 20,000 पर मंथ सैलरी पे करता हूँ, बट मैंने उसको फरवरी एंड मार्च का सैलरी नहीं दिया, तो कितने मंथ्स का सैलरी दिया? 10 मंथ्स। अप्रैल से लेके मार्च तक ईयर होता है, मैंने 10 मंथ्स का सैलरी दिया। व्हाट इज द सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर? पूरा साल का काउंट करूंगा, इररेस्पेक्टिव वेदर आई हैव पेड और नॉट। नेक्स्ट ईयर पे कर दूंगा, कोई बात नहीं है, बट करंट ईयर में जितना भी इनकम और एक्सपेंस हुआ है, आई विल कंसिडर फॉर करंट ईयर। अज्यूमिंग 10 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मेरे को नेक्स्ट ईयर का फीस भी दे दिया, should I consider that money as my current year income? मैंने अभी तक काम करके ही नहीं दिया। इज इट क्लियर? दिस इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है? व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस फॉर ए ईयर, यू कंसीडर सिर्फ उसी साल का इनकम और एक्सपेंस।
आप डेफर कर सकते हो। अब सोचो कि क्या हुआ, रेंट, आदित्य ने बोला रेंट, तो लेट्स अज्यूमिंग प्रीमाइसेस का रेंट था 1 लाख पर मंथ, राइट, 1 लाख पर मंथ। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ मैंने रेंट शो ही नहीं किया बुक्स में। फोर्थ मंथ में मेरे को बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने उस मंथ में चारों महीने का रेंट एक्सपेंस शो कर दिया। कैन आई शो? यस आई कैन शो। टिल 31st ऑफ मार्च तक मैं दिखा सकता हूं, उसके बाद नहीं शो कर सकता। एक साल का एक्सपेंस मेरे को उसी ईयर में शो करना पड़ेगा, उसको नेक्स्ट ईयर में आप नहीं शो करोगे। इज इट क्लियर? दैट इज एक्रूअल बेसिस, इररिस्पेक्टिव वेदर आपने पे किया या फिर नहीं किया, थोड़ा मैनिपुलेशन चलता है। हाँ, फेक एंट्री इन द सेंस, कैसा फेक एंट्री? मतलब इस फाइनेंशियल ईयर पे दिसंबर मंथ चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मैंने जनवरी का पेमेंट में चारों महीना में कर दिया। हाँ, चारों मंथ का मैंने अलग अलग पेमेंट किया, फिर फाइनेंशियल मंथ खत्म हो गया, सॉरी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, अप्रैल मंथ शुरू हुआ, अप्रैल मंथ में मतलब अच्छा से प्रॉफिट दे रहे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो वो चारों मंथ में मैंने अप्रैल में सब कुछ दिखा दिया। कैसे दिखाओ? आपने तो ऑलरेडी पेमेंट कर दिया। तो दिसंबर का पेमेंट अलग से पूरा कैश में किया है, और फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, इट शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस। आपने फेक एंट्री किया, जब तक सरकारी नौकर आपके घर तक नहीं पहुंचते तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन पहुंचे, जिस दिन उनके पास तुम्हारा सॉफ्टवेयर लग गया हाथ, तो इंफॉर्मेशन पूछ पूछ के तुम्हारा पसीना निकाल देंगे। बेटा बता, ये कहाँ आदमी है, इसको जो तू सैलरी पेमेंट कर रहा है कहाँ है, इतनी कैश जो पेमेंट करी है, वो रिवर्स ट्रायलिंग स्टार्ट कर देंगे कि जिस दिन तू कैश पेमेंट कर रहा है, पहले तो उस दिन की सील दिखा। तेरे बिजनेस में उस दिन की कैश सेल है नहीं, कोई बात नहीं, प्रीवियस डे की बता। प्रीवियस डे में तूने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तेरे पास कैश रेट था ही नहीं, तूने कैश में पेमेंट किया तो किया कैसे? ऐसा रिवर्स ट्रायल बैठाएंगे ना, तुमको देख पाए में हार के भैया छोड़ो ना, कितना खत्म करो बात को, ठीक है, समझ में आया? तो देयर आर 3 assumptions of an account. Number 1, going concern assumption. Number 2, consistency. Number 3, accrual basis of accounting. Accrual basis में क्या करते हैं? We consider income and expense for the current year. जिस फाइनेंशियल ईयर में हम हैं, उस फाइनेंशियल ईयर का सारा इनकम और एक्सपेंस कंसीडर करेंगे, इररिस्पेक्टिव आपको मिला या नहीं मिला फर्क नहीं पड़ता, आपने पे किया या फिर नहीं किया उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट इफ इट वाज बिलोंगिंग टू माय करंट ईयर, तो मुझे उसको काउंट करना पड़ेगा फॉर कैलकुलेटिंग माय नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। समझ में आया? 3 assumption क्या क्या पढ़ा आज? इनफ्लो आउटफ्लो से चालू किया। तो बिजनेस में जब पैसा आता है तो 2 ही तरह का होगा, 1 रेवेन्यू रिसीप्ट्स, अनदर 1 कैपिटल रिसीप्ट। जब जाता है तभी भी 2 ही होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा रेकरिंग इन नेचर है? रेवेन्यू। और कौन सा नॉन रेकरिंग है? कैपिटल। इफ रेवेन्यू रिसीप्ट है तो मेरे लिए क्या है? इनकम। इफ कैपिटल रिसीप्ट है तो लाइबिलिटी। कैपिटल रिसीप्ट टेंशन देता है वो, तो लाइबिलिटी। रेवेन्यू पेमेंट्स है तो एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो एसेट्स। क्लियर है ये वाला चीज? फिर 3 assumptions पढ़े थे, कौन से? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है? बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, मालिक भी ऊपर जा सकता है लेकिन धंधा ऊपर कभी नहीं जाएगा, चलता जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस assumption we classify our assets and liabilities into current and non current. करंट एसेट्स क्या था? जिसका बेनिफिट या फिर पैसा विद इन 12 मंथ्स में आ जाएगा। नॉन करंट एसेट्स जो 12 महीने से ज्यादा के लिए मुझे बेनिफिट्स देगा, वो नॉन करंट है। करंट लायबिलिटी ऑब्लिगेशन जो मुझे 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे करना है। नॉन करंट लायबिलिटी जो मुझे 12 महीने के बाद भी पेमेंट करना है। इज इट क्लियर? देन कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल पढ़ा था। कंसिस्टेंसी के 3 एक्सेप्शंस थे, क्या क्या? For the better presentation, required by law, change in accounting standards. ये 3 हुआ तो आप लोग कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। एक्रूअल बेसिस क्या था?
We consider all the incomes and expenses for the year during the year, irrespective whether paid or not, received or not. समझ में आया? इसका थोड़ा सा रिकैप और इस और दो चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था भूल गए तुम लोग? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट. ट्रांजैक्शन क्या है? Which will change my financial position of the business. Every transaction that will change my financial position. Event क्या है? And results of all the transactions. ठीक है? Thank you. That's all for today.